Hello guys, Abhishek here. I secured a rank of 14,761 and a score of 666 in NEET 2024. I filled out the All India counseling and my state counseling. I preferred the college allotted to me through state counseling, that is Rajendra Institute of Medical Science, that is in Ranchi, as you might know, RIMS Ranchi. It's a very good college. It has a higher ranking than most of the AIIMS, and it's better too. It's the best college in our state. So I'm really happy about it that I've been allotted the Rajendra Institute of Medical Science. I was hoping to get a rank of around 3,000, 4,000. According to last year at 666, the rank was around 2,800, 3,000. I thought that the students have increased, so there might be some inflation. But I didn't think the inflation would be this great, right? Nobody thought about that actually. But the inflation was so great, and instead of a 4,500, 5,000 rank that I expected, I got a rank of around 16,000 actually I got. Then after the Supreme Court hearing and all, it was re-evaluated and the rank was around 14,000. Because hopefully I marked the right answer, and that option, that my 5 marks were not taken away from me because I marked the right answer. So yeah, all that happened and my rank increased by 2,000. It became 14,000. It was great, but not so great. But still I'm happy that I've got the college. Many dream of it, but I got it. So I'm happy. I'm not satisfied, but I am happy. So I would like to share that the drop years are the hardest in the student's life, right? Because there will be nobody to understand you, right? तुम जिस मोहल्ले में रहोगे या तुम जिस नेबरहुड में रहोगे, वहाँ पे सब लोग 1 साल तक तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे. मैं भी निकलता तो नहीं था, but whenever I used to go out, some of the other person in the neighborhood used to ask me कि बेटा क्या कर रहे हो and what are you doing. So I used to be like ashamed of myself. I used to feel it isn't a thing to be ashamed of, but I used to be ashamed of myself. I used to say कि हाँ तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा. But the look on their faces told me everything about their emotions, what they felt about me. So yeah, that was very depressing for me. It would be depressing, of course, because it in the drop year, if you're serious about it, or else you can do masti, right? Drop year kya hai, masti karo. But I felt like a loser because in school, not a topper, but I was a bright student. I got 94% in my 12th, 94% in my 10th. So I was not used to that feeling of failure, that I have not achieved something, that there is a gap now, right? कि मैं हर क्लास से 10th, 11th से 12th, then everybody is like 12th to college. Most of my friends, not MBBS, they are like BCom or anything, but they were in colleges. So I felt really alone, sad, depressed. But I was like, no, I can't let the depression take over me, right? So I was so dedicated. I used to make a 15-hour. I would advise you to do the same. I would advise you guys to make a 15-hour schedule, okay? A 15-hour schedule for your self-study. Because देखो अगर 15 घंटे का बना रहे हो, it's for the exam के पहले के 3 months, right? अगर 15 घंटे का you make a schedule of 15 घंटा, okay? 15-hour schedule, उसमें से 12 hours would be efficient. मतलब ये मत सोचो 15 घंटे का बनाया तो 15 घंटे एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं हम, कभी नहीं होगा. You will have to go to the bathroom, you will have to use the bathroom, or you will have to drink water or do something, or sometimes you will zone out क्योंकि you are reading the same thing again and again. So that was the most impressive part. मैं अभी academics में नहीं घुसना चाहता उतना. It's all about the emotional part of the drop, right? That's the biggest part. Because मेरा एक दोस्त था, he used to say कि यार 400 आ जाए बहुत है, ये है वो है. He secured a good marks. He got 580, 560. I was like, bro, you dreamt, मतलब you thought that 400 आ जाए बहुत है, तो तेरे around 600 आए. If you would have thought कि 500 आ जाए, you would have easily gotten into an MBBS college. He is getting in a government dental college, of course. But yeah, now he realizes that, because see, all of your friends are not your friends, basically saying सारे दोस्त अच्छे नहीं होते.
उसके भी दोस्त थे जिन्होंने उसको कॉल करके बोला कि यार दे यूज टू आस्क हिम क्वेश्चंस। और जब तुम्हें भी ये फीलिंग पता होगी, इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन और तुम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो यू फील मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने अंदर। उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया था। बट यार और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने जाता था तो वी यूज़ टू टॉक फॉर एन आवर और सो। हमारा पेपर 1.5 घंटे में हो जाता था। सारे स्टूडेंट्स दे यूज़ टू लुक एट अस लाइक इन्होंने कुछ पढ़ के भी आया है कि क्या कर रही है। बट या मैं और वो वी यूज़ टू टॉक फॉर आवर्स, राइट, बिकॉज वी यूज़ टू सपोर्ट ईच अदर। दैट वाज अ सपोर्ट कि नहीं भाई यू कैन डू इट, ही यूज़ टू से यू कैन डू इट, यू विल ईजिली डू इट। So we believed in each other and we boosted our marks like great. I won't mention that in this video of course. If future में कभी मेरे को लगा कि मेरे को बनानी है तो I will post that as well. So yeah, देखो मेन बात है ड्रॉप ईयर में एकेडमिक्स से ज़्यादा इमोशनल एंड मेंटल जो हेल्थ होती है ना वो मैटर करती है आपकी। क्योंकि I just felt like a loser in my drop year. वो जो फीलिंग होती है ना कि यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, एक साल गायब हो जाता है ज़िंदगी से, एक साल बिल्कुल गायब। जब आप आओगे ना फिर आएगा कि एक साल मैंने किया क्या यार, आई हैव वेस्टेड इट, यू विल फील। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अपने ड्रॉप ईयर्स को सीरियसली लो यार। डोंट लेट अ डिप्रेशन को टेक ओवर मत करने दो तुमको। क्योंकि लास्ट में अब एंड करूँगा मैं वीडियो, मैं एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। मेरे खुद के 500 नंबर आते थे, 500, 480, 450 ऐसे नंबर आते थे, 530, लास्ट मॉक टेस्ट में 560। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था यार तेरे नंबर नहीं आ रहे। मैं बोलता था देखिए मॉक टेस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको नीट में ला के दिखाऊँगा नंबर। तो मैंने लेके आया, मेरा दोस्त ये ऑलमोस्ट इंक्रीज हिज नंबर बाई 300। तुम सोच सकते हो 300 to 350 नंबर्स बढ़ाया उसने। इट्स अनइमेजिनेबल। एक साल में कोई इमेजिन नहीं कर सकता है भाई, मैं बोल के दे रहा हूँ आपको। ही वॉज सो मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं था उसमें खुद को, और मैंने सपोर्ट किया उसे। तो यू विल हैव समवन, एक पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, उनकी एडवाइस लिया करो, उनसे बात किया करो, टॉक टू समवन। ऐसे नहीं कि अपने में खुद में दब के रह गए, ठीक है। तो और मैं तो अब वीडियोज़ डाला ही करूँगा, ये मेरा चैनल मैं बनाने वाला था। मैं सोचता था लाइक यू नो आई यूज़ टू थिंक कि मतलब जोन आउट हो जाता था पढ़ने पढ़ते। आई यूज़ टू थिंक कि मेरे यार अच्छे नंबर आए तो मेरे को बुलाएंगे, जहाँ मैं मॉक टेस्ट देने जाता था ऑफकोर्स कि कुछ बोलने के लिए या कुछ। तो जब हो गया ना सब, फिर वो ड्रीम्स मतलब क्या बोले, ड्रीम्स एकदम सच्चाई में बदल जाते हैं ना, तब अलग फीलिंग होती है, बिल्कुल ही अलग। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा मत करो कि एक्सपेक्टेशंस इतने हाई मत रखो कि खुद को तुम ये करो। बट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एम फॉर द स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं ना, एंड इट्स नेवर एंडिंग भाई। खुद पे विश्वास रखो, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, खुद पे विश्वास रखो। अगर नहीं हो रहा तो वो भी बोल दो घर वालों को कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, और जब तक आप इन्जॉय नहीं करोगे देयर इज़ नो क्या बोलते, देयर इज़ नो फ़ायदा, नो प्रॉफिट इन दैट, इट्स जस्ट अ लॉस स्कीम। खुद पे बिलीव करो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है मेरे को लगता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ड्रॉप अ फॉलो, ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कॉमेंट, शेयर इट एज मच एज यू कैन। फॉर द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग इट, प्लीज़ शो इट टू योर चाइल्ड who is willing to take a drop. For the kids, for the guys, boys, girls, whoever is watching it, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिगर है, तभी आप ड्रॉप लेने की हिम्मत कर रहे हो, क्योंकि सबके अंदर नहीं होता। तो थम्स अप टू दैट, आई सपोर्ट यू। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और शेयर एज मच एज यू कैन गाइस। मैं अपना इंस्टा भी दे दूँगा नीचे, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।